Good evening, friends. Today we have a, one of the finest person who knows the subject well, and he has given a time for us in Ahmedabad Management Campus. He's a regular faculty also in Ahmedabad Management, and I don't know, but somebody might have also attended his class also. So I make just introductions and brief on the subject, and then I will hand over the mic to Mr. Ankit Majmudar. Uh, he has a 20 years of experience, friends. He has traveled extensively across the globe. More than 20 countries he has traveled, like European countries, Singapore and all these places. He has a specialization in export of the business. He has given a training to more than 3,500 aspirants, and lot of business houses also seeking his advice. He has given a lot of inspirations to the couple of good entrepreneurs. So therefore, he is considered as one of the best person as far as the export advisory is concerned, friends. With this brief introduction, friends, I introduce Mr. Ankit Majmudar. Give a big round of applause to Ankit bhai. Friends, today the topic is very interesting considering the present scenario as well. You know that the Trump's whims is going on here and there in the market, and we heard a lot about it. And our export is maybe get hit by the tariff kind of things, friends. I just dwell upon on this. I will take not more than 4 5 minutes because the subject he is going to deal with that. But I just try to build up the foundations or the background on the subject. You are well aware, friends, that last year India's total export is about 825 billion dollars approximately. Total trade of the business is this. So total is about 125 billions, and out of 825 billions brands, the merchandise export is about some 437 billion dollar, and the service is about 387 billion dollar. Of course, the datas are considered in this case, then there will be a deficit in goods exports and surplus in service export, friends. Therefore, we need to work upon this equations that how to increase the goods exports and also simultaneously the service export. He is the best person that he is looking at the scenario in a 20, 30, beyond that, not immediately next 5 years, where our economy is going to grow up to the $1 trillion more than in a coming years, and therefore total 5 trillion economy will happen by 2028. So we have to achieve that targets by making a more and more exports. Just I analyze certain datas, and I come across that by the measure of the Trump, whether the India is going to adversely affect or not. Of course, that is altogether a different subjects, not today is relevant. But suppose by tariff, suppose it is increase 25 plus 25, so it is at 50%. So I'm talking about that the tariff impact. What may be the impact of the tariff, and how the India is going to deal with? Of course, it is a more political subject than the economical subject as on today. But if this tariff is going to continue, then what is the gain for USA and what is the loss for India in that case? Overall gain to the USA in the next year would be they will earn more than $300 billion by way of the additional revenue by the tinkering the tariffs. And over a period of time, they said that if this kind of the scenario will continue, then in their coffer it can be a $2 trillion they can collect the money across the globe by way of the additional tariff. But friends, on one way he is going to collect that. On the other hand, he says that I will distribute among the people in form of the dividend and all. But looking to the debt scenario of the USA, and the considering the financial condition of the USA, there is a approximately debt is about some $36 trillion,
And if you consider the $300 billion, it's a very, very minuscule kind of contribution. Hardly it can serve the interest, not more than that. And that gentleman is now having a whims of putting a tariff kind of things up and down to control the geography of the world rather than the economy. That is the agenda, and therefore he never look at the India. He look at the India that India should not grow. It is only one reason where it has been increased is not that he is more worried about the oil exports or oil imports of Russia's, but it is that he wanted to unrestricted entry in this country for agri products and the dairy products, and that unrestricted entry at any cost will not be allowed by India. India has faced lot of battles in the past. This is the economical battle, friends. We have faced the even physical battle also. We have been confronted, we have been butchered, we have been punished by many invaders in this country. That is much more than the economic things. So this will come and this will go. India will survive, India will progress, friends, and we have to work upon the agenda that how economic growth of India will happen in this country, friends. So economic growth is very, very crucial and very important. As on today, there are a lot of incentives are given by the government. Government will have to increase couple of incentives, and they have to spare money for a sustenance of the economy, sustenance of the exports. He is the right person to deal with what kind of the things, but there are a couple of demands from various corners, from the associations and the other traders group, that something has to be done on a various fronts. So what is to be done, how to increase the exports, and export is the major earning for India. Of course, India need not have to have the large component of the export because we have a consumption economy itself. Whatever we produce, there is a huge demand in our country itself, that but to have the import, we need to have the exports. For that purpose, whatever import is required, we need to have the export, so there will be a less or minimal deficit, trade deficit, and therefore the export to that extent is required, not for the country's GDP growth. Country's GDP growth is on its own will grow because we have a hard, large populations, and 140 crores people are living in this country. They need a lot of consumptions, and therefore whatever we produce, it will be consumed. It is not for the exports, we can survive it. Without export also we can survive, but export is required, badly needed, for to compensate the import components. And therefore, friends, there must be a good amount of the exports, and we should encash our skill, our understanding, our business, our potentials by doing exports. It is nothing harm, and we have to put a more efforts for doing that business. With the short brief introductions, I will hand over to Ankit ji. We are more eagerly eager to hear him. So therefore, I would request Ankit to continue with his talk. Please, Ankit. Thank you. Good evening, friends. Reading lot about Trump tariffs. दिमाग चकरा गया है. वो बंदा है ही ऐसा, क्या करें. उसकी बात करना है, करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी बात करनी है, वो भी करेंगे. मैं यहाँ पे मैंने जो स्लाइड्स यहाँ पे बनाई हैं, वो बेसिकली 2-3 चीज़ों पे गौर ज़्यादा किया है. कि एक तो ऑफ कोर्स यूएस का क्या हो रहा है, यूके के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और ओवरऑल दी जियोपॉलिटिक्स कैसे अभी चलेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, वो देखेंगे. एक्सपोर्ट पोटेंशियल कहाँ पे, कौन से रीजन में आपको एक्सप्लोर करनी रहेंगी. सो एज ए एक्सपोर्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी चीज़ों में हमको हेल्प करने वाला है. सो ये कुछ मैंने चीज़ें बनाई हैं. लेट अस सी वन बाय वन कि क्या. फर्स्ट इज लेट अस सी द एक्सपोर्ट्स ओवरव्यू. यहाँ पे जैसे सर हैज ऑलरेडी कन्वेड दैट इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स बेसिकली वुड एक्सीड $870 billion in FY 25-26.
That is a record from 825 billion which happened last year. So we are growing in this particular direction. Of course there would be a lot of obstacles and challenges जहाँ पे US का भी ये ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ है तो ये थोड़ा बहुत रिवाइज होगा बट ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. दिस इज़ व्हाट वी आर फीलिंग. सेकेंडली कि गुड्स एक्सपोर्ट्स का जहाँ पे सवाल है 5 to 6% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स. व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस एक्सपोर्ट्स जहाँ पे हम लोग अकाउंट सर्विस की बात करते हैं, ऑडिटिंग की बात करते हैं, कंसल्टिंग सर्विस की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, ITES की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की बात करते हैं, तो ये सब ढेर सारी सैकड़ों काइंड ऑफ सर्विसेज है विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट ऑफ 9 to 10%. सो करीबन $450 billion वुड कम फ्रॉम गुड्स प्रोडक्ट्स जिसको हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बोलते हैं और बाकी का $400 billion करीबन सर्विस से आएगा. इसलिए इम्पैक्ट गुड्स और प्रोडक्ट्स पे हालांकि ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना होने के बावजूद भी टोटल जब आप एक्सपोर्ट्स देखेंगे गुड्स एंड सर्विस का तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. दिस इज व्हाट वी वर वंडरिंग. ऑफ कोर्स इसके अलावा इंडिया हैज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ UAE, ऑस्ट्रेलिया, यूके का सदा भी 24 तारीख को हुआ है. सो यूके के साथ हुआ है, हम लोग वो भी देखने वाले हैं. विच ऑल आर दी प्रोडक्ट सेक्टर्स जहाँ पे 0% ड्यूटीज़ हो गया है, जो पहले करीबन 8%, 9%, 70% तक ड्यूटीज़ था. सो वो भी एक यहाँ पे स्लाइड है. सो यू विल फाइंड 2 slides ऑन यूके एज वेल कि हम लोग कहाँ कहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं रिगार्डिंग दी यूके एंड इंडिया FTA. जहाँ तक UAE का एग्रीमेंट का सवाल है विच वॉज साइन इन द मंथ ऑफ May 2022, उस दिन या उस महीने से लेके आज तक करीबन एक्सपोर्ट्स जो इंक्रीज हुआ इन लास्ट 3 years इज अराउंड 50%. सो इन अ वे इंडिया इज ऑन राइट ट्रैक व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. कि हम लोग सोचते हैं ये कितने कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जितनी कंट्री के साथ होने वाली है उतना एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम एंड वैल्यू बढ़ने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि सामने वाली कंट्रीज़ में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं उस कंट्रीज़ में ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़ीरो हो जाती है. सो दिस इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. When we talk about service exports to UAE, it has almost doubled in last 4 to 5 years. उसी तरह से जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इट हैज़ इंक्रीज बाय 3 times. करीबन $20 billion का एक्सपोर्ट का हुआ करता था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का. नाउ इट इज़ अराउंड $60-61 billion. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ ट्रिपल्ड. जहाँ तक पोस्ट US FTA का सवाल है, इंडियन GDP रिवाइज किया है कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज ने, नीति आयोग ने, RBI ने. डेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 6% to 6.2% रफली, क्योंकि अभी 6.5-6.7% का प्रोजेक्शन था विच विल नाउ गो डाउन बिकॉज ऑफ दिस ऑब्वियस ड्यूटी स्ट्रक्चर्स विच वी आर गोइंग टू फेस अनफॉर्चुनेटली. अब हम देखेंगे टॉप सेक्टर्स एंड रीजन. यहाँ पे मैंने आपको कंट्रीज़ की बात नहीं की है, यहाँ पे मैंने रीजन की जिक्र किया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, EU हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका एंड आशियन. तो ये 5 एक जो रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हो. ये लेटेस्ट डेटा है 2024 का है. सो करीबन $80 billion का US में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था लास्ट कैलेंडर ईयर. क्या क्या चीज़ थी? जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा हो गया, मशीनरी हो गया, एपरल, व्हीकल्स हो गया. क्या अब ये प्रोडक्ट सेक्टर वहाँ पे एक्सपोर्ट होंगे? आंसर इज यस. क्या एक्सपोर्ट पहले से कम होगा? आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ 50% ड्यूटीज विच इज लाइकली टू गेट इम्पोज फ्रॉम 27th of August. आईफोन का एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हो, इट हैज गॉन अप बाय 76%. US इंडिया का ट्रेड डील का भी टॉक्स हो सकता है. मैंने यहाँ पे नोटेबल ट्रेड ट्रेंड्स में लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है. और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग भी करीबन $50 billion का एक्सपोर्ट करते हैं विच इंक्लूड्स टेक्सटाइल्स, एपरल, मशीनरी, मैकेनिकल आइटम्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. FTA साइन हो गया है. क्रुशियल पॉइंट अभी ये है कि UK के साथ एग्रीमेंट अपना हो गया है. थर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट, वी विल टॉक अबाउट मिडल ईस्ट, जहाँ पे वी आर लाइकली टू डू बिजनेस मोर देन $45 billion दिस ईयर. अभी लास्ट ईयर 30 हुआ था, 37 हुआ था. जहाँ पे मुख्य तौर पे जो प्रोडक्ट्स है वो जेम्स एंड ज्वेलरी थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है. ऑफ कोर्स मैंगोज वाज वन ऑफ द पायोनियर इन एक्सपोर्ट्स. मिनरल फ्यूल्स थे. सो स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्रेड विद UAE इज गोइंग टू फर्दर एड अप with this. Apart from this, UAE के साथ इंडिया का जो करार हुआ है, that is only one country out of Gulf, GCC, जिसको हम बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज. गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में there are 6 countries. UAE हो गया, उसके बाद सो वी हैव ए करार, वी हैव FTA विद UAE. नाउ इट इज टर्न फॉर ओमान, जो करीबन दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए. दिस इज व्हाट वी बिलीव. ओमान एंड देन फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार एंड बहरीन. So all 6 countries when we cover,
सो एसेंशियली अभी यूएई में से प्रोडक्ट्स जाता है तो डेट गोज एट 0% ड्यूटीज। एक साल के अंदर अगर वो 5 कंट्री के साथ इंडिया एफटीए करता है, सो वो पांचों कंट्रीज में व्हेन वी एक्सपोर्ट इट विल बी गोइंग एट 0% ड्यूटीज। सो ये जो $37 बिलियन दिख रहा है वो $45 बिलियन क्रॉस करेगा। दिस इज, इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो प्रोजेक्शन डजंट कम फ्रॉम एनी वन व्यूज एंड व्यूम्स, ये मेरा ख्याल या मेरा सोच नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्शन एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो उसके लिए ये भी 45 बिलियन क्रॉस करेगा। इसलिए मेरा ये बड़ा मानना है, मैं कभी क्लाइंट्स के साथ बैठता हूँ या बात मीटिंग होती है, अभी राजकोट में हमारा कॉन्क्लेव था तो वहाँ पे भी वी वर डिस्कसिंग आउट के क्या है, तो हम लोग वही बता रहे थे कि यूएस में एक्सपोर्ट्स कम होगा लेकिन उसकी भरपाई बाकी के मुल्क कर लेंगे अपने लिए। सो यूके इज़ वन ऑफ इट। यूके का अभी फ़िलहाल जो करीबन टोटल ट्रेड है डेट इज़ अराउंड 30 बिलियन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 60 बिलियन इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। इसलिए ये सब्जेक्ट हमने चुना है कि 2025 के बियॉन्ड एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल क्या है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 1 or 2 months, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन। कंसिडरिंग अफ्रीका का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़, सेम एज इंडिया। दुनिया में टॉप 20 कंट्रीज का अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने एक लिस्ट निकाला था विच इज ग्रोइंग एट सब्सटेंशियल परसेंटेज। सो टॉप 20 कंट्रीज जो जीडीपी जिसका सबसे ज़्यादा उभर के आता है वो 20 कंट्रीज में से 10 कंट्रीज तो अफ्रीका की है। सो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि वी वर नॉट फोकसिंग ऑन अफ्रीकन कंट्रीज टिल डेट। इथोपिया को नहीं देखते थे हम लोग गैबोन को नहीं देखते थे, हम लोग कंट्री कंसिडर नहीं करते थे। आधी कंट्रीज के नाम नहीं पता है, बुर्किना फासो, माली, चाड, ये सब कंट्रीज। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस यूएस एक नई विंडो या नया डोर ओपन होने वाला है एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू स्टार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग अवर एक्सपोर्ट्स। कि कहाँ, अभी तक तो वही था, यूएस करेंगे, यूके करेंगे, 3-4 कंट्री दिमाग में घूमता रहता था। अभी नाउ वी एज एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट्स एज वेल। तो जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे करके दिया है, आपके लिए बना के दिया है कि कौन से प्रोडक्ट्स में अंकित कौन सी कंट्रीज उभर के आ सकती है या कौन से कंट्रीज में कौन से प्रोडक्ट्स उभर के आ सकती है। कई लोग मुझे पूछते हैं रैंडमली मेरे सेशन में, ये कौन सा प्रोडक्ट करूँ, तो जवाब मिल जाएगा आज। कौन से कंट्रीज में मुझे नया एक्सप्लोर करना चाहिए, उसका भी जवाब मिल जाएगा। सो प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के सेशन में। सो अफ्रीका में मेनली क्या जाता है, मिनरल फ्यूल्स जाता है, फार्मा जाता है, फूड एंड इंजीनियरिंग गुड्स भी वहाँ पे जाते हैं। एंड देन आसियान जहाँ पे बिजनेस हुआ है $44 बिलियन का, करीबन 7 से 8 कंट्रीज वहाँ पे, मेनली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, एग्रो एंड केमिकल्स। सो इंडिया आसियान का ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है लेकिन उसको रीनेगोशिएट करना है। सो डैट ये जब बाकी के म्यांमार कंट्री हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, जो भी आसियान कंट्रीज़ के 7-8 कंट्रीज़ है, उसमें अगर हम ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं, सो द इम्पोर्ट ड्यूटीज विल कम डाउन and overall exports of India will increase substantially. So this is the top sectors and top region. ये देखें अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट्स के लिए किस हाल में है। तो फर्स्ट इज यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आप लोगों ने PLI स्कीम के बारे में सुना हुआ है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, करीबन 15 सेक्टर्स पे सरकार ने ये दिया हुआ है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस यूएस टैरिफ जो ऑनगोइंग अभी ये जो मसला जो चल रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स या फिर सेक्टर्स एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये 15 सेक्टर में PLI जो देके रखी है सर, इसको भी इंक्रीज करें और 4-5 सेक्टर इसमें इंक्लूड करें विच हैज़ ए ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट। तो हो सकता है PLI स्कीम ऐसे ऐसे सेक्टर्स पे भी लागू पड़नी शुरू हो जाएगी। सो पहले 15 सेक्टर्स में पड़ती थी, अब वो 20 सेक्टर्स में पड़ेगी। सो ओवरऑल एक्सपोर्टर्स वुड हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स। जब तक वो मोटिवेशन नहीं आएगा सरकार की तरफ से या अदर मशीनरीज की तरफ से, सो दैट विल बी एन हेल्पिंग हैंड। हमें तो जो काम करना ही, हमें क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। एज एक्सपोर्टर क्या करेंगे लिखा है, एज ए सरकार क्या करेगी, लेट सरकार डिसाइड। वो अपना काम करेगी, हम तो अपना काम करें भाई, अपने तो अपना कर्म करना है, राइट। सेकेंडली ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड। जो ग्लोबल डिमांड इज ग्रोइंग, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डूइंग वेल इन एज फार एज मिडल ईस्ट रीजन इज कंसर्न, एज फार एज अफ्रीकन नेशंस आर कंसर्न, दिस कंट्रीज आर डूइंग वेल। लेकिन हम लोग आज तक वो रीजन या वो सेक्टर्स पे ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे क्योंकि हमारा गुजारा US UK से चलता रहता था। अभी जब US में चैलेंज आ रहा है, सो नाउ वी आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स। यार यहाँ तो बंद हो जाएगा अंकित, अभी यहाँ पे क्या करूँ, तो करो, जाके ढूंढो कि कहाँ कौन से मार्केट्स हो सकते हैं। सो वन इज योर वेस्टर्न अफ्रीका, अनदर इज ईस्टर्न अफ्रीका, अनदर इज नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, अल्जीरिया, तुनिशिया वाला पोर्शन, एंड देन अंगोला इन साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन।
There are 54 countries in South Africa. So you can do business in any of the countries provided your payments are getting secured. Obviously ना, business अभी करना है, payment secured है, तो वो कैसे करोगे? ECGC is there to take your payment security, तो उससे आप प्रीमियम भर के कर सकते हो. There are a lot of other options. LC हो गया, सामने वाला बंदे को मिलना पड़ेगा, जाके मार्केट में मिलना पड़ेगा, तो देन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इसलिए उसको बोलते हैं. अनदर इज इम्प्रूव ट्रेड एग्रीमेंट. सब देख रहे हैं अभी ये एग्रीमेंट हो रही है, अभी यूके के साथ एग्रीमेंट हुई. द सेकंड इज विल बी फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन. दिस इज व्हाट वी वेर शेयरिंग व्हेन देयर वाज इन राजकोट एनक्लेव कॉन्क्लेव था वहाँ पे हमारा जब भी नेक्स्ट लास्ट वीक में. सो अभी यूरोपियन यूनियन विल फॉलो. 27 कंट्री जो रह गई है वहाँ पे भी 0% ड्यूटीज हो जाएगी. सो अपार्ट फ्रॉम यूके यू हैव ए विंडोज एंड डोर्स ओपन फॉर ऑल 28 कंट्रीज. सो ये यूएस में जो लॉस हुआ है वो तो भरपाई होने वाला है. हाँ, अब 2-3 महीने में नहीं होगा, वो मुझे भी पता है 2-3 महीने, लेकिन 1-2 साल के अंदर वो बैलेंस हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द करंट सिचुएशन. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इज व्हाट आई वाज टॉकिंग फॉर अस एज ए एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी. तुम अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर आम ही बेचना है तो मार्केट्स आर लिमिटेड. सीजनल प्रोडक्ट है, 2 महीने ही बिकेगा. आम के अलावा तुमने कोई मैंगो पल्प का कुछ सोचा है क्या? छोटा सा मशीन लगा के मैं मैंगो पल्प में कुछ करूँगा, मैंगो स्क्वॉश में करूँगा, मैंगो जूस में करूँगा, अच्छे से बॉटल में पैक करके इको फ्रेंडली पैकेजिंग में बेच के उसको यूरोप में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में वगैरह में भेजूँगा. क्या वो प्लान्स हैं क्या? हम मैंगो ही करेंगे, वो दुनिया आके निकल जाएगी. So this is where we as exporters need to start thinking. गवर्नमेंट जो कर रही है अपने हिसाब से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ कंट्रीज के साथ बातें कर रही है, नेगोशिएट कर रही है. हम अपने बेस पे क्या कर रहे हैं? तो नंबर 4th was this. 5th is rise in e-commerce and MSMEs, जहाँ पे स्मॉल बिजनेस, हम लोग अभी हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, कभी हैंडलूम की बात करते हैं. लॉट ऑफ सच प्रोडक्ट्स विच गोज इन ए ह्यूज वे. अभी कोई एनिमल फीड की बात कर रहा था, कैटल फीड की बात कर रहा था. अब ये सब प्रोडक्ट का ह्यूज पोटेंशियल है. कैटल फीड, एनिमल फीड आपके मिडल ईस्ट में पूरा चलने वाला है, अफ्रीका में पूरा चलने वाला है, क्योंकि रेगिस्तानी है. सो अभी ये यूएस कनाडा से हट के ये सब नई आइडियाज़, नए कंट्रीज बैठ के सोचोगे तो मिलेगा ही, पूरी दुनिया बाकी है अभी तो, राइट. सिर्फ एक कंट्री बंद हुआ है या थोड़ा उसमें थोड़ा स्टॉप या कॉमा आया है. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट. एंड न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार की कंट्रीज आप कौन से एक्सप्लोर कर रहे हो करके. So this is how the opportunities are available in the huge way. इंडिया यूके की बात करता हूँ, मैं सीधा स्लाइड पे आता हूँ. ये देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, उसके पहले प्रोसेस फूड में कितना इंपोर्ट ड्यूटीज था यूके में? 70%. कोई बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे 170 में हो जाएगी. You are not competitive. We as exporters and Indian exporters are not competitive. Now you are competitive. Answer is yes. क्योंकि बाजू में बड़ा जीरो लिखा है. Now it is zero. Similarly, vegetable oils, transport, leather, footwear, electrical machineries, textiles, clothing, wood, paper, base metals, minerals, chemicals, instrument, gems and jewelry, furniture, arms and ammunition. सब 2% से ऊपर था. Now 98-99% जो प्रोडक्ट्स कैटेगरी यहाँ से जाएगी, it will have 0% duties. So कई लोग मुझे पूछते हैं कौन से प्रोडक्ट में मैं अंकित में टी शर्ट में मेरा अच्छा काम है, या मैं किसी बंदे को जानता हूँ जो टी शर्ट या वीमेंस कुर्ती बनाता है. कैन यूके बी माई मार्केट? सर आंसर इज यस. पहले था? पहले नहीं था, लिमिटेड था. अब ये खुल गया है, जाओ वहाँ पे करो. फर्नीचर, नाउ इट इज ओपन विंडो, जाके बेचो वहाँ पे. यू नीड टू फाइंड डीलर्स, यू नीड टू फाइंड होलसेलर्स, यू नीड टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बिकता है, कैसे बिकता है. अभी सेशन में कई लोगों ने अटेंड किया था, बात किया था. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड those nuances, and then you go to that market and then connect with the buyers, send them samples, see to it कि क्या चीज़ें हो सकती हैं. करेक्ट. क्वालिटी अच्छी रहनी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं. क्वालिटी इज़ दी ओनली लॉन्ग टर्म गेम प्लान. अगर वो लंबे समय तक टिकना है, क्वालिटी यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. वो करना ही है अच्छी क्वालिटी. सो दिस इज इंडिया यूके FTA. अभी ये स्नैपशॉट एक लिया है अबाउट 99% of Indian exports to benefit from zero duty in the UK. Merchandise trade जो रहा है, सो इंडिया कितना परसेंटेज कट कर रहा है यूके पे? यानी अगर इंडिया से यूके चीज़ें जा रही है, सो यूके बोल रहा है कि तुम्हारे 99% प्रोडक्ट्स पे भी 0% ड्यूटीज है. वही यूके से जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रही है, इंडिया ने उसको क्या बोला है कि वी विल कवर ओनली 90%. सो हम तो वैसे भी 9% एक्सेस में चल रहे हैं.
सो यहाँ पे आपका ट्रेड डेफिसिट का इश्यूज नहीं है, वी विल बी ऑन प्लस साइड. दिस इज व्हाट वी करंटली वी कुड एक्सट्रापोलेट कि ये प्रोजेक्शन ही है हमारा करके, राइट. अभी सर्विस में भी देखें, 2 वे सर्विस, ITES, फाइनेंशियल प्रोफेशनल सर्विस, ये सब चेकअप होने वाली है. गेन्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे पूरा एक सेक्टर्स बेसिकली दे दिया है कि टेक्सटाइल, मरीन हो गया, स्पोर्ट्स टॉयज़ हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ऑटो पार्ट्स, engine, organic chemicals. So from chemicals to engineering, from toys to your food products, all sectors are getting open up. अभी ये इसका फ़ायदा लेना पड़ेगा. और नीचे लिखा है इंडिया यूके का बायलैटरल ट्रेड 60 बिलियन तक पहुंच जाएगा. ये 2030 लिखा है, बट एंड वी वुड बी अचीविंग दिस बाय 2028. दिस इज व्हाट वी परसीव. बेनिफिट्स फॉर इंडियन कस्टमर्स, बेनिफिट फॉर यूके शॉपर्स. यूके को कैसे बेनिफिट होगा? चीपर क्लोथ अवेलेबल होगा, फुटवेयर अवेलेबल होगा, फूड प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है. सो उनके वहाँ पे प्राइसेस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन वुड बी टेकन केयर ऑफ. तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है. FTA इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन. ट्रम्प की तरह नहीं आई विन यू लूज, इसलिए वो चल नहीं रही है, क्योंकि वो अपना फिलोसॉफी लेके घूम रहा है. वो देखते हैं, उसमें भी आगे आते हैं क्या होता है. टॉप एक्सपोर्ट्स, अरे यूके तुम कर रहे हो, मेरे को पहले टॉप 10 प्रोडक्ट्स बता दो ना इंडिया से यूके जाती है. ये रही, ये मेरा डेटा नहीं है, WTO का डेटा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. टेलीकॉम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, RMG मतलब रेडीमेड गारमेंट्स, योर टी-शर्ट्स, विमेन कुर्तीज, विमेन टॉप्स, सब कुछ जाएगा. ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स हम सबसे ज़्यादा किसको बेचते हैं? US को. अभी US कम हो रहा है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन UK, क्योंकि वैसे भी अब 0% ड्यूटीज़ है. आपकी ड्रग्स यहाँ से पैरासीटामोल से लेके मल्टीविटामिन गोलियाँ जाएंगी, इट विल बी एट 0% ड्यूटीज़. नाउ ट्राई टू कैटर UK मार्केट, फॉरगेट अबाउट US एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब तक ये थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं आ जाता या फिर कुछ डील नहीं हो जाता तब तक. गोल्ड एंड प्रीशियस ज्वेलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता था? US एंड हांगकॉन्ग, चाइना. सो नाउ UK इज ऑल्सो ओपन फॉर दैट, 0% ड्यूटीज़ लगा दिया है, करो. सिल्वर, प्रोडक्ट्स फ्रॉम आयरन एंड स्टील एंड अगेन मैन-मेड फाइबर्स. ये देखें, हीरो ऑफ द बैटल इज हियर. US imposes 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. ये कल स्लाइड बनाया था, सुबह 50 हो गया, इसलिए भी इसमें नहीं है. सो ही इज चेंजिंग हिज माइंड मोर फ्रिक्वेंटली देन आई चेंजिंग माई PPT. वेरी विम्सिकल गाय. अब ये बोलता है सुनामी को भी मैंने रोक दिया, ये बोलता है इंडिया पाकिस्तान वॉर को भी मैंने रोक दिया, अब ये बोलता है इजराइल को भी मैं रोक दिया, अब ये बोलता है रशिया और यूक्रेन को भी मैंने रोक दिया. ऐसा लगता है भगवान साक्षात US में ही बैठे हैं. सो एट टाइम्स इंडिविजुअल ईगो की वजह से दुनिया को भुगतना पड़ता है. US तो भुगतेगा ही, दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट. इंडिया को भुगतना पड़ेगा, देख लेते हैं कितना भुगतना पड़ेगा. ओके चलो उस पर बात करते हैं. US टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, है ना. ये मज़ेदार चीज़ है कि भाई ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड US रीच एट $131 बिलियन. आज तक की इतिहास में सबसे ज़्यादा ये हुआ था. थिंग्स वेर गोइंग वेरी स्मूथली एंड देन दिस गाय एंटर्स द पिक्चर. सो यहाँ पे इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया था US में? करीबन $86 बिलियन का, और इंपोर्ट कितना किया था? $45 बिलियन का. सो ट्रेड डेफिसिट US को कितना हुआ? करीबन $40 बिलियन का. दिस इज व्हाट प्रदीप सर वाज शेयरिंग विथ यू, कि ही वाज मोर कंसर्न कि भाई ये ट्रेड डेफिसिट क्या है. बट अगेन ही वाज करेक्ट कि ट्रेड डेफिसिट इज नॉट द ओनली रीज़न. वो तो हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग. अभी ये ट्रेड डेफिसिट का शक्ल दिखा के उसके जियोपॉलिटिकल चीज़ें कुछ और चल रही है, उस पर भी आते हैं. ओके ठीक है. इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू US डिक्लाइन बाय, इट विल बी गोइंग डाउन बाय 30% मिनिमम टू मिनिमम इन FY26. सो अभी ये $86 बिलियन का जो बिजनेस किया था, एक्सपोर्ट किया था US को, दैट विल बी नाउ लेस देन 60 और अराउंड $50 बिलियन. सो फ्रॉम 86 टू सीधा 50 के आजू बाजू आ जाना चाहिए, अगर यही ड्यूटीज़ बरकरार रही तो. अगर देयर आर लॉट ऑफ अगर्स एंड किंतु परंतु बहुत है, इफ्स एंड बट्स बहुत है. अगर ये 6 महीने में कुछ इफ्स एंड बट्स हो जाती हैं, कुछ डील हो जाती है, तो देन ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. बट फिलहाल पकड़ के चलते हैं कि करीबन $30 to $40 बिलियन का नुकसान इंडिया को इन शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा और करना रहेगा. ओके. इंडिया का GDP पे इस पर क्या असर होगा? इट वुड बी नॉट मोर देन 0.2%. इसलिए अगर 6.4% 6.5% से इंडियन GDP बढ़ रहा था,
Now it will be still at 6%. It will be still higher than most of the G7 and G20 countries across globe. So we are the finest economy as such. अभी ये फाइनेस्ट इकोनॉमी को ये बंदा डेड इकोनॉमी बोल रहा है, अभी इसका क्या करें, कुछ नहीं कर सकते. चलो ठीक है. और इन्फ्लेशन कितना रहेगा आरबीआई के टारगेट के हिसाब से, इट वुड बी लेस देन 4%. सो नथिंग टू वरी अबाउट इवन इन इन्फ्लेशन. Another sector specific hitting industries like pharma for sure, garments and precious stones, auto parts, leather, goods, steel, aluminum and possibly electronics to some extent. So MSME का जहाँ तक सवाल है उनके लिए थोड़ा बहुत मशक्कत वाले दिन आ सकते हैं अगर उनका बिजनेस सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर उनका बिजनेस स्कैटर्ड है, डाइवर्सिफाइड है, तो उनको भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. इसके अलावा ट्रम्प्स टैरिफ टू द अमेरिकन हाउस होल्ड वुड बी $2,400 दिस ईयर, क्योंकि वहाँ पे कपड़े और टेक्सटाइल की चीज़ें महंगी हो जाएंगी. क्रिसमस के कपड़े यहीं से जाते थे, वो सब अब महंगे होने वाले हैं. तो वहाँ पे एक एक घर का खर्चा, अगर जो घर वहाँ पे एक समझ लो 4 लोगों का घर वहाँ पे अगर महीने का $10,000 में चल रहा था, अब वो 12,500 में चलेगा. सो इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ने वाला है, इसलिए उसके कंट्री के लोग उससे ज़्यादा खफा होने वाले हैं कंपेयर टू अपने खफा होने से ज़्यादा. करेक्ट. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द कंट्री स्पेसिफिक कि भाई इंक्रीज किया लेकिन इम्पैक्ट क्या. इम्पैक्ट इज नॉट ओनली ऑन इंडिया, impact is not only on world, even it is adversely impacting the US economy. कितने टका से ग्रो रही है? 3% से. आगे जाने क्या होगा अभी देखें. ट्रम्प टैरिफ्स का जो कंट्री वाइज स्पेसिफिक है, ये मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाला है. साउथ कोरिया में उसने खाली 15% डाला है, यूरोपियन यूनियन 15%, जापान 15%, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया 19%. दिस इज लेटेस्ट, कल का डेटा है ये. वियतनाम आप बोलोगे इट इज 20%, यूके इट इज 10%, बांग्लादेश 20%, कंबोडिया, ताइवान, मलेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और 19%, चाइना 30%. अभी टैरिफ 26% था, अभी 25% हो गया, कल के दिन में 50% कर दिया. सो इंडिया का जो टैरिफ ड्यूटीज लगाया है ट्रंप ने, यूएस ने, दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना. खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? यस, खुश होना चाहिए कि इतना पावरफुल कंट्री हम लोग इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उसकी नज़र बिगड़ी हुई है, ये सब ऑब्स्टेकल्स डाल रहा है. वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग एंड हाउ इंडिया इज ग्रोइंग. तभी तो उसको वो खनक रहा है ना, ये क्या है करके, ये आगे कहाँ से आ गया. ओके. अभी रियल बिग गेम क्या है? अभी ये जैसे प्रदीप सर ने बताया था कि भी एक ट्रेड डेफिसिट तो एक बहाना है. मेन उसको कहाँ पे सुई कहाँ पे चुभती है, उसका मेन गेम प्लान क्या है. वेदर इट इज ट्रम्प, वेदर इट इज CIA, वेदर इट इज US, और बुरे जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं. अभी थोड़ा एक्सपोर्ट्स के लिए थोड़ा कम सोचते हैं. जियोपॉलिटिक्स में ये है कि देयर आर ओनली 4 ट्रूली सोवरेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वन इज US, रशिया, चाइना, इंडिया. इसके अलावा सोवरेन कंट्रीज कोई नहीं. सोवरेन का मतलब है कि ऑटोनोमस कंट्री का मतलब है कि ना ये US की सुनेगा, ना ये चाइना की सुनेगा, ना ये US से डरेगा, ना चाइना और रशिया से, ना इंडिया से डरेगा. सो ताइवान चाइना से डरता है, इसलिए वो सोवरेन ऑटोनोमस नहीं है. जापान डरता है, बहुत हद तक डरता है. यूके डरता है, यूरोपियन यूनियन डरता है. यस, ऑल आर NATO, ऑल आर US गवर्न इकोनॉमीज. सिर्फ ये 4 कंट्रीज एक दूसरे से नहीं डरते, एंड इंडिया इज वन ऑफ इट. जो पहले 15-20 साल पहले ये आलम नहीं था, अभी ये है, और यही सबसे ज़्यादा उसको चीज़ें चुभती है. सो व्हाट ही वांट्स रियली with Russia Ukraine war, he wants Russia to go down with his economy. जो sanctions लगे हुए हैं, वॉर में जब कंट्री कोई भी पड़ता है तो उसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, वो उसको पता है, इसलिए वो जानबूझ के यूक्रेन का ये करके उसने कांधे पे बंदूक चलाई है. प्लस इसके साथ क्या होगा, यूक्रेन रशिया का वॉर होगा, ये रशियन इकोनॉमी गो डाउन. जो एक सोवरेन कंट्री है वो खत्म हो गया, 4 में से एक खत्म हो गया, अभी उसको बाकी के 2 संभालने. एक तो वो खुद है. सो रशिया का यूक्रेन का ये जो हुआ है उसमें उसको क्या हुआ कि उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स या केमिकल्स या मिनरल्स मिलेंगे, जहाँ पे वो अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह की इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा देगा. AI, रोबोटिक्स, आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हो वो सब रेयर मिनरल्स, लिथियम से कहाँ से आता है. सो वहाँ से ये सब चीज़ें आती है, तो उसको वो पावर, वो कंट्रोल, वो कमांड चाहिए उस एरियाज पे. दैट इज़ वन ऑफ द
रीजन दैट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ हिडन गेम, बिग गेम। ये मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 10, 15, 20, 50 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। Second is, many countries in European Union will automatically go down or decline by GDP because they are not going to receive material from Russia, which is closely connected, geographically connected, and resources abundant, which includes minerals, rare earth ka material, plus oil, petroleum, and gas. All 4 kind of resources नहीं मिलने रहेंगे क्योंकि US विश कि नेटो के प्रेशर में आके यूरोपियन यूनियन वोंट बाय। इसलिए यूरोपियन यूनियन को अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन देता है ज़्यादा? इंडिया देता है। कहाँ से देता है? रशिया से क्रूड खरीदते हैं हम लोग, उसको रिफाइन करके यूरोप में भेजते हैं, विच इज़ इंक्रीजिंग एडिशनल कॉस्ट, एंड दैट्स वाई इन्फ्लेशन वुड गो हेवायर इन यूरोपियन यूनियन एंड इकोनॉमी विल गो डाउन। दिस इज वॉट ही विश। यही तो बड़ी गेम है। उसके अलावा यूएस वॉन्ट्स टू शो द वर्ल्ड दैट इट इज स्टिल अ वर्ल्ड लीडर एंड स्टिल ए क्लास मॉनिटर, क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। अभी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने बंद करा है, हम लोग मना कर रहे हैं मुंह पे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए वो खफा है, उसका ईगो हर्ट है। वो बोल रहा है यूक्रेन की भी मैंने स्टॉप कराया, ये भी मैंने स्टॉप कराया, अभी कोई मान नहीं रहा है उसकी बात। wants to take upon India and China simultaneously, claiming that they are supporting Russia। अभी चाइना और इंडिया को बताएगा कि रशिया को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन में काफ़ी लोग मर रहे हैं, दिस इज़ वेरी एंटी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। विद दिस ही विल पुट लॉट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस इन टर्म्स ऑफ हायर टैरिफ ड्यूटीज एंड इन टर्म्स ऑफ मैनी अदर मेजर्स। वो कर सकता है, करेक्ट। So when 3 promising countries like India, China and Russia suffers, US will automatically stay number 1. As simple as it is. तुम 3 लोग क्लास में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहे हो रैंक पे, उसको तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको तुम बुक्स नहीं दे रहे हो, उसको वो बेचारा ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन उसका तुम छुड़वा रहे हो, तो यू आर ब्रिंगिंग दोज 3 ब्राइट स्टूडेंट्स डाउन, और आप तो वैसे ही चौथे पे हो, तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे आ जाओगे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं किसी और को नीचे लेके आऊंगा। ओके, अभी ये ट्रिगर कैसे हुआ? अभी ये सब जो है गेम का प्लान, और ये सब क्यों ट्रिगर हुआ? फर्स्ट इज इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएस, क्योंकि कनाडा ने वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया हुआ है कि तेरे डेयरी प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। और इंडिया को पता है कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं तो एक तो वो बेकार से प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्शन जो इंडिया नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन पे अभी है, और जो फार्मर्स हैं, जो कोऑपरेटिव डेयरीज चल रही है, उसका क्या, वो सब कहाँ जाएंगे? सो ही इज टेकिंग राइट डिसीजन। नंबर 2 इज रिजेक्टिंग एनी इंटरवेंशन, जैसे इंटरवेंशन ऑपरेशन सिंदूर में ये चिल्ला रहा था बंदा कि मैंने रोका है, मैंने रोका। हमने क्लेरिफाई कर दिया कि तुमने नहीं रोका है, और पाकिस्तान बोलता है कि भाई इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस के लिए, तो पाकिस्तान को ये 19% ड्यूटी पे खिला रहा है, और अपने से अगेंस्ट हो गया क्योंकि भाई हमने उसको काउंटर, उसका ईगो हर्ट हुआ, भाई मैंने रोका है, तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तुमने नहीं रोका है। ये सब वन ऑफ द रीजन। अनदर इज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, US offered F-35 fighter jets to India, which India straight away declined, which is not in our defense interest. We will still buy Rafale from France. If need be, we will buy and continue to buy defense products from Russia. क्यों? क्योंकि हमारी 10, 20, 25 साल की एग्रीमेंट है। तुम अभी अभी यहाँ पे F-35 लेके घूम रहे हो, तो तुम्हारा ये कोई चावल या गेहूँ तो है नहीं कि तुमने बोला ना बोरी हमने उठा ली। भाई हमारा एग्रीमेंट है फ्रांस और इसके साथ, आधी पेमेंट हमने की हुई है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, हमारी अपनी खुद की मजबूरी है। सो फिर ये रुट गया कि मेरा F-35 क्यों नहीं ले रहा है? सो बिकॉज डिफेंस डील नहीं हो रही है, उसके ऑयल नहीं बिक रहे हैं, उसको वो बोलता है कि रशिया से ऑयल ना लो, मेरे से ऑयल लो जो कि ज़्यादा दाम में। इंडिया मना कर रहा है कि भाई हम सस्ते में जब ऑयल मिल रहा है रशिया से, तुमसे महंगे दाम में क्यों ले? अब उसको ये सब चीज़ें खटक रही है। उसके अलावा इंडिया एक्टिवली सीकिंग करेंसी ऑप्शंस ड्यूरिंग ब्रिक्स मीटिंग, जो उसको बहुत ज़्यादा यूएस को, ट्रम्प, आई एम नॉट टॉकिंग ट्रम्प इन ए पर्सन और इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग इन यूएस इन ए वेरी जेनरिक वे, फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्री। वो कंट्री को ऐसा लगा कि ब्रिक्स में अगर ये करेंसी ओपन कोई नई करेंसी ला ली, सो व्हाट विल हैपन टू यूएस डॉलर। 100 ट्रांजेक्शन होते हैं आज की तारीख में, 80 to 85, 80% ज़्यादा डॉलर्स में होते हैं। पहले ये फिगर था 90%। अभी ये कोई करेंसी नहीं आ रही है ब्रिक्स की, तो डेट विल अगेन डॉलर्स 80% हो रहा है, वो करीबन 75-72 हो जाएगा।
So the dollar will lose its value from the global platform, जो वो US नहीं चाहता. This is one of the reason. And then of course last is oil purchase and defense deals with Russia, which is indirectly supporting Russian economy. वो वही चाहता था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर और रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाए, और रशिया की इकोनॉमी जो थी उससे ज़्यादा बढ़ रही है. तो ये बंदा टेंशन में कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चाइना एंड इंडिया आर सपोर्टिंग रशिया बाय बाइंग रशियन प्रोडक्ट्स इन इंडियन रुपीज एंड चाइनीज रेमिम्बी. वो बोलते हैं डॉलर सैंक्शंस लगा दिया तो भी लोग काम कैसे कर रहे हैं, हम लोग रुपीज में काम कर रहे हैं, चाइना इज ऑफरिंग देयर युआन, तो उसकी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसलिए वो डरा हुआ है कि अगर ये 3 कंट्री का कनेक्शन हो गया तो यूएस का तो मुश्किल है वर्ल्ड पावर में एट नंबर 1 रहना. दिस इज द बिग गेम. अभी व्हाट ऑल आर दी सिनेरियोज, ये कुछ मैंने अपने सजेशंस है या मेरा ऑब्जर्वेशंस है, मेरा जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स है वो मैंने यहाँ पे उसको ये किया हुआ है. सो दिस आर नॉट अवेलेबल ऑन वेबसाइट, वो यहाँ वहाँ नहीं है. दिस ऑल माई काफ़ी हम लोग बातें करते रहते हैं जैसे सर जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बातें, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की. व्हाट कैन बी दी सिनेरियो आफ्टर दिस. ये तो हो गया जो हो गया, अभी कर दिया 50% कर दिया, अभी आगे क्या. द वर्स्ट सिनेरियो इज व्हेन यूएस एंड चाइना एंटर्स इनटू डील एज बोथ दिस कंट्री, दोनों कंट्री चाहती है कि इंडिया आगे ना आए, एंड यूएस डजंट वांट टू रिपीट इस मिस्टेक बाय क्रिएटिंग अनदर चाइना इन द फॉर्म ऑफ इंडिया. वो पहले मिस्टेक कर चुका है. 60, 70, 75, 80s में 78 में चाइनीज इकोनॉमी ओपन हुई थी. अपनी कब हुई थी? 1991 में. ठीक है, उनकी 78 में हुई थी. तब यूएस ने कहा था कि वी वोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग. भाई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का लेबर इज वेरी कॉस्ट, वी विल गिव ऑल दी प्रोडक्ट्स, ऑल दिस जो भी हैं चीज़ें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू चाइना, लेट चाइना मेक मैन्युफैक्चर. बनाते रहे, बहुत सारे लोग हैं, वैसे भी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी उस वक्त, वो बनाते रहे, हम यहाँ पे देंगे ब्रांडिंग करके अपना काम चलाएंगे. अब वो मिस्टेक उनको बहुत भुगतनी पड़ती है क्योंकि चाइना इज नाउ नंबर 2 इकोनॉमी. करेक्ट. तो अभी वो इंडिया के साथ नहीं चाहता कि ये दूसरा चाइना बन रहा है अभी. तो ये एक हो गया. सो इसके बाद क्या होगा कि देयर वुड बी ए लॉन्ग टर्म ट्रेड वॉर विद इंडिया रिटेलिएटिंग. अभी इंडिया रिटेलिएट करेगा विद रेसिप्रोकल ड्यूटीज और यूएस इवन बैनिंग H1B वीजा विच इट वोंट एबल टू अफोर्ड. क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा एसेट इज H1B वीजा. उनके खुद के लोग तो है ही नहीं. सुंदर पिचाई यहाँ का है, जितने भी सीईओज हैं यहाँ के, जितने भी सिलिकॉन वैली के लोग हैं, बाकी सब अलग अलग नेशंस है, इधर दे आर फ्रॉम सिंगापुर, दे आर फ्रॉम चाइना और दे आर फ्रॉम इंडिया. उनके लोग तो है ही नहीं वहाँ पे. सो अगर ये इससे साथ खेल रहा है सो कंट्री विल रियली कम डाउन एज ए यूएस. एंड ट्रेड बैरियर्स इवन टू इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट. अभी इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस एंड कनाडा का है, और उसका अभी सेकंड मोटिव ये रहेगा कि मैंने गुड्स पे तो 50% डाल दिया है, अब मैं सर्विस पे भी डालूंगा. करेक्ट. सो दिस इज वन सिनेरियो विच इज रियली टेरिफाइंग. अनदर इज इंडिया साइंस ए ट्रेड डील विथ यूएसए, जहाँ पे वो छोटे मोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पे मान जाएगा, हाँ भाई मैं 0% पे काम करूंगा, आप भेजते रहो, एंड देन विन विन सिचुएशन करके टैरिफ्स कैन बी इमीडिएटली रिवर्स. 50 से सीधा 25 हो जाएगा. इंडिया एंड चाइना, थर्ड केस में इंडिया एंड चाइना इंटरवेंस. वो दोनों मिलके रशिया को बोलते हैं भाई ये बंद कर, अभी तो यूक्रेन में तेरे को जो करना है, तेरे पास 1 महीना 2 महीना पड़ा है, पूरा साफ करना है तो कर दे, 2 महीने है, इससे ज़्यादा तो इसको मत खींच. भाई सब लोग तकलीफ में आ रहे हैं. सो दिस इज अनदर केस विच यूएस वोंट लेट इट हैपन, क्योंकि वो यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है. आर्म्स किसको बेचेगा? यूक्रेन में जो आर्म्स एंड एमिनिशन कहाँ से आते हैं? नेटो क्या है? यूएस, वही है. सो दिस इज बिगर गेम. अनदर इज यूएस एंड रशिया मेक्स ए पीस डील. ट्रम्प जाके बोलेगा प्यूटिन को, प्यूटिन जाएगा ट्रम्प को बोले खत्म करो इसको, तो विच इज वेरी लेस लाइकली टू हैपन. एंड देन फिफ्थ इज विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, फिफ्थ एंड फर्स्ट, कि जहाँ पे 3 ईस्टर्न जायंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, चाइना एंड रशिया कम्स टुगेदर, एंड देन यूएस विल हैव रियली बैड फेस देन. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अजीत डोवल साहब पहुँच गए रशिया में, और आज अभी लेटेस्ट अभी मैसेज मिला है गवर्नमेंट से कि डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन प्यूटिन इज लाइकली टू विजिट इंडिया वेरी सून. नंबर 1. नंबर 2. नंबर 3, मोदी साहब जाने वाले हैं 30 को SCO मीटिंग के लिए चाइना. सो ये जो 5th पॉइंट है उसको नज़र में रखे हुए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अगर ये 3 कंट्रीज आ जाती है, विच यूएस विल नेवर लेट इट हैपन, लेकिन अगर आ जाती है तो फिर ये सब पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा.
एंड देन यूएस के उसके ही पार्टी के लोग उसको टाटा बाय बाय करेंगे, भाई तू अब घर पे बैठ शांति से, तेरा एंटरटेनमेंट बहुत हो गया है, you enjoy with your family and let US do what it wants to do. So these are the various scenarios. और छठा कोई सिनेरियो नहीं मुझे दिख रहा है, जो भी सिनेरियो होगा ये 5 में से कुछ ना कुछ होगा. हाउ इट वर्क्स 1 और 2, 2 और 3, 3 and 5 कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन इसी में से कुछ ना कुछ होगा. दिस इज व्हाट वी बिलीव एज ए जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं. तो अभी ओवरकमिंग चैलेंजेस, चलो अभी यूएस का फिलहाल ब्रेक करते हैं. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी और क्या करना चाहिए. नंबर 1 इज इट में एक्सटेंड रोड टैप स्कीम, जो हम सबको पता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस फॉर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट विच इज करंटली गिवन टू मोर देन 10,500 प्रोडक्ट्स. अभी एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाके हाथ जोड़ेंगे, भैया ये 10,000 प्रोडक्ट अभी इसको 20 करो भाई, और ये तुमने जो परसेंटेज 0.3 से 3.9% दिया था अभी इसको 5% कर दो. ये 3.9 किसके कहने पे किया था, WTO के कहने के. WTO ने क्यों कहा था हमको, क्योंकि यूएस रोता हुआ गया था वहाँ पे कि भाई इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, उसको ये सब नहीं, किसी को इंसेंटिव स्कीम्स नहीं देनी चाहिए एक्सपोर्ट को. WTO बोले ठीक है, लेकिन अब WTO की हम क्यों सुनेंगे, क्योंकि वही नहीं सुन रहा है WTO की. So, इसलिए बता रहा था कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में इंडिया इज लाइकली टू रिटालिएट, कि भाई जब WTO की यूएस नहीं सुनता है तो हम क्यों सुने भैया. तो ये हो सकता है. अनदर इज एक्सटेंशन ऑफ PLI स्कीम, जो मैंने बताया 15 सेक्टर्स से और सेक्टर्स में जाएंगी. रीइंट्रोड्यूसिंग ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद रही थी, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट की बात करते हो, जब आप क्रेडिट लेते हो, पैसे उठाते हो बैंक से, तो यहाँ पे 6.5% ब्याज चलता है. चाइना में कितना चलता है, 3% चलता है. साउथ कोरिया में 2.5% है. बाकी के मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज में, जो सिंगापुर वगैरह में 2-2.25% में है. तो हम अभी 6.5% 100 रुपये पे भर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. अभी ये स्कीम इंट्रोड्यूस होती है जो पहले थी 24 में ख़त्म हो गई, अभी उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं. तो अगर ये 3 to 5% अपने को मिलती है, सो योर इंटरेस्ट रेट, इंडियाज इंटरेस्ट रेट फॉर MSME सेक्टर विल बी एट पार विथ चाइना और साउथ कोरिया. जो भी 6% है, 3% माफ मिल गया, सब्सिडाइज मिल गया, योर बोरोइंग विल बी एट 3%. सो कॉम्पिटिटिवनेस तुम्हारी बरकरार रहेगी. अभी वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई MSME पीपल आर नॉट गोइंग फॉर फंडिंग. पैसे लगाएं तो कहाँ लगाएं, पैसे लेने महंगे हैं 6.5% पे normally. So this scheme can change the scenario altogether. और this is likely to be there. ये होना ही है, ये आ ही जाएगा sooner or later. तभी यहाँ पे मेंशन किया है. इसलिए कहता हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली माई व्यूज़ एंड व्यूम्स, ये पूरा जियोपॉलिटिक्स कहाँ पे क्या हो रहा है, और इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के प्रेशर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, उस लिहाज से यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई है. Okay. Another is simplified compliance single window clearance for exporters so as to go for ease of doing business. आज की तारीख में सोलर प्रोजेक्ट अगर आप लगाते हो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, यू नीड 100 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस. ये मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कहती है. सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन एंड देन ऑफ कोर्स स्टेट लेवल गवर्नमेंट परमिशन. यू नीड एटलीस्ट 80 to 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस, लाइसेंस वगैरह. अगर इसको ईज करते हो 5 लाइसेंस में खत्म, so then this can fasten up and this will motivate a lot of MSME players to get into business and start their export activities, जो अभी यहाँ पे अटक रही है थोड़ी बहुत. पहले से काफ़ी improve हुआ है, but there is still scope of improvement. FTA with US will be the biggest and quickest relief for Indian exporters. अगर ये हो जाती है कल के दिन में, 21, 22, 25 के तारीख के आजू बाजू अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ पे आ रहा है, उस दौरान ये हो जाता है तो ये 50 ड्यूटी जो अभी वो फिर से 25 आ जाएगी, 25 निकल जाएगी. सो उस डेलीगेशन में यहाँ पे क्या होता है, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वॉज जस्ट शेयरिंग विद सर के नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वुड बी रियली इंटरेस्टिंग, नॉट फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द वर्ल्ड एज एट ए लार्ज. बड़े मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, न्यूज़ सुनने को मिल सकती है. ओके, एंड लास्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगोशिएटिंग FTA विद यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे 27 कंट्रीज में 0% ड्यूटीज होने की संभावना है. अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, क्या करना चाहिए, अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए एज एक्सपोर्टर. फर्स्ट इज स्टार्ट मूविंग टू न्यूअर मार्केट्स इन ए लॉन्ग रन सो दैट इट कैन इंसुलेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्ट्स. अनदर इज you move toward European Union, ASEAN, Middle East market, especially in sectors like engineering goods and climate allying manufacturing. Focus on quality, value-added products, improving and streamlining supply chain,
विथ एडेड एडवांटेज। अभी ये तो तुमने यहाँ पे लिखा है, इसका आगे पोटेंशियल तो बताओ कि कौन सी कंट्रीज में क्या है, मुझे क्या करना है, ये तो ठीक है लिख दिया। नाउ बिफोर वी गो टू प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स एंड कंट्रीज एंड रीजन, डज दिस टैरिफ रियली गोइंग टू इम्पैक्ट इकोनॉमी? मैंने बता दिया कितना इम्पैक्ट है। अभी यहाँ पे देख लो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है कि परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, अगर $100 इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो यूएस को सिर्फ 18% करता है। एज सिंपल एज इट इज। यूएई 8% एंड फॉलोड बाय अदर, बाकी के नेशंस को वो 50% करता है। सो चाहे कितना भी ड्यूटीज हो, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। $100 में से $20 का फर्क पड़ेगा। अगर वो $20 में से $10 का फर्क पड़ेगा, चलो मान लेता हूँ 10 कम हो जाएगा, तो बाकी का 10 की मुझे यूके से कवर मिलेगा, मुझे बाकी की एफटीए से कवर मिलेगा, बाकी के जब नए मार्केट्स एक्सप्लोर करूँगा वहाँ से मुझे वो उसकी भरपाई हो जाएगी। सो इन डेट केस ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी बिलीव। अब देखिए बाकी की कंट्रीज़ का दारोमदार यूएस पे कितना है। वियतनाम 87%। अगर ये 20% 19% ड्यूटीज डाला है, वियतनाम इकोनॉमी इज गोइंग टू कम डाउन। सिमिलरली थाईलैंड, इनका $100 का अगर जीडीपी है तो $65 कम्स फ्रॉम यूएस। इंडिया का कितना है? 22%। फॉर योर रेफरेंस चाइना का कितना है? एनीवन? 20%। अब जब 20% यूएस पे दारोमदार चाइना है, जब उसको टेंशन नहीं है, अपने को क्यों टेंशन है? अपना भी 20%, 2022 है, 2% ज़्यादा है। सो आइडियली बेस्ड ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स डेटा मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली माई व्यूज एंड ख्याल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन दिस डेटा आई कैन टेल कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। देन दैट्स द रीज़न वाई वी शुड नॉट बी पैनिकिंग इन एनी वे। करेक्ट? ये देखें, जर्नी बिगिंस फ्रॉम ड्यूटीज टू डेवलपमेंट। अभी ये देखें, एक छोटा सा मैंने अभी एक मैसेज मैंने कहीं पे पढ़ा था, यूएस वेपोनाइज फूड टू स्टार्व इंडिया। 75 की बात है, इंदिरा गांधी ने जब चावल और गेहूं इंडिया में इंपोर्ट किए थे फ्रॉम यूएस, वो दौर भी देखा था। और आज हम वो दौर भी देख रहे हैं जहाँ पे हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने वाले हैं फिलीपींस और बाकी की कंट्रीज़ में। एंड इन जस्ट 4 years वी बिकम सेल्फ रिलायंट इन फूड प्रोडक्शन। उस वक्त इंदिरा गांधी ने बताया था कि मैं लास्ट टाइम यूएस के सामने भीख मांग रही हूँ। मैं ये कमिट करती हूँ अपने आप को कि आज के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर कौन सी भी पार्टी का इंडिया में रहेगा, वो अपने हाथ कभी यूएस पे खाने के लिए नहीं फैलाएगा। सो सही भी हुआ। यूएस disallowed access to nuclear technologies. In 10 years we tested nuclear weapons successfully. यूएस allowed नहीं किया एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी। इंडिया इज नाउ ए मिसाइल पावर, जहां ब्रह्मोस से लोग कांपते हैं आज की तारीख में। यूएस डिनाइड जीपीएस डेटा इन कारगिल वॉर। कारगिल में जब हमको जीपीएस डेटा चाहिए था तो इट वाज नॉट अवेलेबल। अब देखें आलम क्या है, इंडिया मेड इज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कॉल्ड नेविक। ये सब आपने सुना हुआ है। सो इसलिए हम तो लिखते हैं थैंक यू यूएस फॉर मेकिंग इंडिया सोवरेन, सुपर स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंस। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तुम जितना हमको रोकने की कोशिश करोगे भैया, इंडिया उतना ही आगे बढ़ेगा। राइट? ओके, अभी आते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे। जो एक्सपोर्ट की बात की तुमने, प्रोडक्ट सेक्टर्स की बात की, वो दिखाओ ना कहाँ पे। ये रहा। सो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। यहाँ पे तीन एमर्जिंग मार्केट्स जो मैं देख रहा हूँ, दैट इज इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया। अब तक तो क्या था भाई, यूएस, यूके और यूरोप ही दिखता था अपने लोगों को। अभी ये आलम में क्या दिखेगा, ये सब दिखने वाला है। अच्छा अंकित, ये तूने रीजन बता दिए, तूने कंट्रीज बता दिए, अभी ये तो बता उसमें में कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा जा सकते हैं। ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, इंडियन गारमेंट। अफ्रीका की तूने बात की, 15 कंट्रीज की बात की, उसमें से टॉप एमर्जिंग कंट्रीज कौन से हैं जीडीपी वाइज? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, केनिया। कौन से प्रोडक्ट्स है? फार्मा, एग्रीकल्चर, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस एंड प्रोसेस्ड फूड। लैटिन अमेरिका एज ए रीजन, कौन सी मेन कंट्री में फोकस करूँ? लैटिन अमेरिका में उनकी 10 कंट्री है, या ब्राज़ील, मैक्सिको चले जाओ, एमर्जिंग मार्केट्स। आईटी सर्विस वन ऑफ द की फॉर इट, मशीनरीज एंड केमिकल्स। मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारी कंट्रीज, अरब नेशन को करते हो तो 25 कंट्री होती है। मैं कहाँ पे जाऊँ? यूएई, सऊदी अरेबिया। कौन से प्रोडक्ट को लेके जाऊँ? गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी, स्पाइसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सो रीजन, कंट्रीज एंड प्रोडक्ट्स, खत्म। कहीं पे कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये स्नैपशॉट ले लिया है, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, अभी वो रीजन की बात की। अब मेरे पास अंकित फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अभी तू मैंने बता कि कहाँ पे मैं लेके जाऊँ। सब में यूएस है, तो अभी फिलहाल उसको थोड़ा नलीफाई करते हैं या उसको थोड़ा अभी इग्नोर करते हैं, ये हटाओ इसको। यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका।
एंड मेरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैं कंप्रेसर बनाता हूँ, पंप बनाता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये सब बनाता हूँ। मैं यूएस के अलावा कहाँ पे जाऊँ भाई? यूरोपियन यूनियन चले जाओ, मिडल ईस्ट चले जाओ। टेक्सटाइल्स के लिए यू चले जाओ, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ। ज्वेलरी के लिए यूएई स्पेसिफिकली, हांगकॉन्ग एंड यूरोप। एग्रीकल्चर के लिए मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपको यूएस दिखता ही नहीं है, देखो, क्योंकि है ही नहीं। तो मत टेंशन करो कि यूएस कहाँ गया हो, है ही नहीं वहाँ पे। की मार्केट्स अपने लिए ये है। मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए यूएस है, ठीक है। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स यूएस, चाइना, जापान, यूरोप। इलेक्ट्रिक मशीनरी के लिए यूएस, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। एंड लेदर गुड्स के लिए यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। यूएस सब में है, लेकिन बाकी के कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन को भी देखना है। हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में करार हो जाए, खत्म, डील हो जाती है। वेरी टफ, बट देन दिस कैन बी बेस्ट हो जाएगा अगर ये होता है तो। अभी मेरे को अभी ये प्रोडक्ट से, ये रीजन की, साउथ ईस्ट एशिया की बात की। अब मुझे एक एक कंट्री में बता कि मैं, मेरे लिए मार्केट्स और उसके कमोडिटीज में क्या लेके जाऊं। अभी यूएस में लिखा है ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, पर्स। अभी यूएस को अभी इग्नोर करते हैं। यूएई में येलो क्यों किया है? क्योंकि इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 99% प्रोडक्ट्स आर 0% ड्यूटीज। कौन से प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके जाओ, गोल्ड ज्वेलरी लेके जाओ, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ। नेदरलैंड में क्या लेके जाऊँ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स। नेदरलैंड में आपको ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स दिख रहा है? यस। ऊपर यूएस में देखो, पहला क्या है? ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल। मेरा डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि जो लॉस में ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स यूएस के मार्केट में करने वाला हूं, उसकी भरपाई नेदरलैंड कर सकता है? आंसर इज यस। दिस इज हाउ यू चेक द डेटा। डेटा एनालिसिस अलग होता है और उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। हैव यू परसीव्ड द डेटा? तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव क्या है उसके लिए। चाइना देखो, आयरन और मरीन प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सिंगापुर, रेसिडुअल केमिकल्स, शिप, बोट, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स। यूके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इक्विपमेंट। यूके में येलो है? यस, आंसर इज 0% ड्यूटीज। सऊदी अरेबिया में क्या करूँ? राइस बासमती करो। अंकित, मेरे को इंजीनियरिंग में समझ नहीं आती, मेरे को फर्नीचर से कोई, मेरे को केमिकल से कोई लेना देना नहीं, मैं तो फार्मर हूँ, मैं तो गेहूँ चावल करता हूँ। जाओ सऊदी अरेबिया में, राइस इन ए बिग डिमांड। अभी तो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी है। पहले पिछले साल बैन था, वो बैन भी हटा दिया है। बेचो राइस। बांग्लादेश, कॉटन यार्न, अदर प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जर्मनी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल, डेयरी, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन। ऑस्ट्रेलिया 0% ड्यूटीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का करार है। यहाँ पर भी ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स दिख रहा है। यानी कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएस, नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया, वैसी और तुम 3 कंट्रीज लगा दोगे तो यूएस का जो लॉस है ये 5 कंट्री मिलकर भरपाई कर सकती है कि नहीं कर सकती? आंसर इज यस। यूएस में आपको पहले ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स दिख रहा है, ठीक है। नेदरलैंड्स में आपको 3rd नंबर और 4th नंबर ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल दिख रहा है। नाउ कम टू ऑस्ट्रेलिया, उसमें ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल 2nd और 3rd दिख रहा है। सो मैं ये समझा रहा था कि यूएस में ये लॉस हुआ, आपने बोला कि यूएस को इग्नोर करो, तो अंकित में ये ड्रग्स, मैं तो, मेरे पास फर्नीचर नहीं है, केमिकल्स नहीं है, मैं तो ड्रग्स फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल वाला हूँ, तो मैं कहाँ पे जाऊँ? यार दोस्त, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाओ ना। और इसके अलावा क्योंकि ये 2 कंट्री डेवलप नेशन है, इट कैन हैव दिस काइंड ऑफ डिमांड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इवन इन कंट्रीज लाइक जापान, इवन इन कंट्रीज, अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन। क्योंकि नेदरलैंड में है तो ये स्पेन में भी होगा, देख लो, जर्मनी में हो सकता है, वी डोंट नो। जर्मनी में है, फिर यहां पे नहीं है, इटली में है, हो सकता है। यू नीड टू एक्सप्लोर। सो दिस की मार्केट्स एंड की प्रोडक्ट्स। अभी देखो, मार्केटिंग मुझे कैसे करना है, मेरे पास प्रोडक्ट है। कई बोलते हैं अंकित यार तू प्रोडक्ट की बातें करता है, मैं तो सर्विस वाला बंदा हूँ, मेरे लिए तुम क्या लेके आए हो? तो ये दिस इज फॉर यू। सो मैं मार्केटिंग कैसे करूँ? फॉर मार्केटिंग गुड्स डेमोन्स्ट्रेशन क्या करोगे? देयर आर सैंपल्स, क्योंकि प्रोडक्ट के सैंपल्स होते हैं। जीरू बेचना है, जीरू का सैंपल है। मैं सर्विस का क्या करूँ? योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर कैपेबिलिटीज। अभी किसी से मैं ब्रेक में बात कर रहा था, जो बंदे फॉरवर्डिंग में थे और उसमें थे, तो वी वर डिस्कसिंग हाउ यू आर गोइंग टू शोकेस योर सर्विस। ये कर सकते हैं। अनदर इज इनिशियल मार्केटिंग बाय, प्रोडक्ट है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए आपके। यहाँ पे फर्म्स प्रिंसिपल यानी कि ओनर, ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन का अगर मैं फाउंडर हूँ तो आई माई सेल्फ शुड बी इन मार्केट, क्योंकि सर्विस पे ट्रस्ट आना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट कैसे आएगा? उसका फाउंडर, उसका ओनर कौन है, तो आपको वो लेके खुद जाना पड़ेगा। सैंपल में थोड़ी लेके जाऊँगा मैं। व्हाट डू यू मार्केट? प्रोडक्ट में योर प्रोडक्ट एंड योर फर्म एंड योर सर्विस।
लोकल मार्केट प्रेजेंस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर वर्चुअल ऑफिस अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में अगर आप, इसलिए मैंने अभी ये फॉरवर्डिंग एजेंट जो मुझे ब्रेक में मिलने आए थे मैंने बताया था कि अगर आपका वर्चुअल ऑफिस वहाँ पे, आपने एजेंट्स नहीं बात करी कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे एजेंट्स वहाँ पे कुछ है, यू कैन शो कि दिस आर द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंपनी, दैट कैन मेक सेंस. कल्चरल फैक्टर्स, प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग, यहाँ पे इंटरपर्सनल डायनामिक्स, लोकल एसोसिएशन विद डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केटियर्स फॉर गुड्स और सर्विस में सर्विस इंडस्ट्री, local events, trade shows, local events, conferences, conclaves, seminars, summits, सर्विस इंडस्ट्री के लिए वो सब मायने रखता है. मीडिया, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, और अगर सर्विस से आप ताल्लुकात रखते हो तो प्रेस कवरेज, लोकल पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स एंड अदर सर्विस फर्म, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गुड्स एंड प्रोडक्ट एक्विजिशन और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. एक छोटा सा यहाँ पे एक अमेज़ॉन के लिए मैंने बनाया है कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि यार मेरा डायरेक्ट नहीं मैं बेच पाता, आई डोंट हैव रिसोर्सेज, मैं छोटा हूँ, मेरा छोटा मोटा कारोबार है, तो अमेज़ॉन से मैं बेच सकता हूँ. आंसर इज यस. क्या उसमें पोटेंशियल है? वेरी ह्यूज पोटेंशियल. कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? होम एंड किचन, ये हो गए होम एक्सेसरीज, ऑर्नामेंट्स, फैब्रिक्स, हेल्थ एंड पर्सनल केयर. ये जा सकते नहीं है, ये फिलहाल जा ही रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. हेल्थ एंड पर्सनल केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया, पर्सनल केयर हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, स्किन केयर हो गया. एपरल में एथनिक वेयर सच एज साड़ीज, कुर्ताज एंड एलिगेंट फॉर्मल एंड कैजुअल अटायर. ज्वेलरी में हैंडमेड पीसीस. टॉयज गेम्स में आप यहाँ यूएस यूके अगेन गुड मार्केट. कितने लोग रजिस्टर हैं अमेजोन पे? 1.5 लाख. अमेजोन कितने कंट्रीज में यहाँ से आपके लिए बेच सकता है आपके प्रोडक्ट्स? 18 से ज़्यादा. होल ऑफ यूरोप, होल ऑफ यूएस, कनाडा एंड ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की कंट्रीज. फिलहाल एक्सपोर्ट्स इंडिया से ई कॉमर्स के जरिए कितना होता है? $5 बिलियन. टोटल कितना है? 450 गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का. ई कॉमर्स कितना करता है? 5 बिलियन. चाइना कितना करता है ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट्स? एनी आइडिया? एनी वाइल्ड गेस? 350 बिलियन डॉलर्स. क्योंकि उनका टोटल एक्सपोर्ट्स कितना है? $3.5 ट्रिलियन, विच इज इक्वल टू इंडियाज जीडीपी. बहुत बड़ा जायंट है. चाइनास जीडीपी इज अराउंड 18 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स. यूएस का 25-27. आवर्स इज 4 ट्रिलियन डॉलर्स. ठीक है. सो रजिस्टर्ड सेलर्स कैन चूज टू शिप मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क या फिर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जहाँ पे अमेजोन ही आपके घर पे, आपके शोरूम पे, आपके ऑफिस में आके हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स लेके जाएगा और यूएस में बेचेगा. सो यू कैन कॉल दिस, ये वेबसाइट है sale.amazon.com, उस पर जाके किसी को टोल फ्री पे बुला लो, आपके वहाँ मिलने आएगा, ऑनलाइन आपको पूरा पाथ दिखाएगा, समझाएगा. एंड दिस इज हाउ यू डू बिजनेस. इज अ ह्यूज पोटेंशियल. इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि 5 बिलियन से ये करीबन 30-50 बिलियन हो जाए इन नेक्स्ट 3 years. करेक्ट. And last, the way forward, current export focus is limited. Global market access है. Focus on Africa. Africa is the dark continent जिसको हम लोग बोलते हैं, which is going to be a shining continent in the way forward. Increase trade with Latin America. जहाँ पे अभी देखो ब्राज़ील का बंदा अभी आज बोल रहा है कि I am not going to call Mr. Trump. I am going to call Mr. मोदी. वो क्या बोलता है कि इंडिया ब्राज़ील का कोई करार होना चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील पे 40% ड्यूटीज उसने डाल दी है. Because he hates Latin America. US hates. He is just a representative. वो बंदा वो अपने कंट्री के हिसाब से चलेगा ना. Strategic trade agreements reduce barriers and expand access and diversified export market, that is global trade partnership. And lastly, Utkrust Bharat, we will make our India once more an excellent one and a superior one. So that's all from my side, friends. Thank you. We are very much thankful, Ankit Bhai, for your coming and delivering a talk and sharing your knowledge. मैं अहमदाबाद मैनेजमेंट की एसोसिएशन से ये बुक हमारी स्मृति में देने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंकित भाई को. So friends, it's a wonderful session and hope that you might have enjoyed. Keep on coming and attending more number of seminars similar to this. Thank you so much for your participation, friends. Thank you.